So now let's start with our today's topic, which is your DNA packaging in the eukaryotes, where we have already discussed that the eukaryotes are the organisms, those who are like animals plus plants, right? So now we are going to see in the eukaryotes DNA packaging among the animals in the humans. So let's start with the DNA packaging in the humans, right? So let us see few points and then we'll come to know, alright? As in our previous lecture we have discussed that DNA is some which is negatively charged, right? So you know that DNA is having a negative charge, and this negative charge is just because it is having the phosphate group linked with it, right? Now you know that there is a protein, and the protein which it is having is the positively charged. Now this protein which is over here in the DNA packaging, it is just a positively charged because it is having lysine plus arginine kind of bases, and because these two are there, these two types of a part are added in the protein. These are the actually amino acids. So because of these amino acids, the protein is positively charged. Fine. Now we have seen that DNA is acidic in nature, right? Whereas the protein which you are having, it is basic, or it is base having in the nature. So DNA is negative because of phosphate group which is acidic. Protein is basic in nature, which is having the two amino acids lysine and arginine, and because of it, it is positively charged. Now let us see the next point. DNA is wrapped, ओके यानी कि कॉइल किया हुआ है. ओके सो डीएनए इज रैप्ड विद द हिस्टोन प्रोटीन. ओके सो हिस्टोन प्रोटीन octamer. Okay, so histone protein octamer which forms the nucleosome to form nucleosome. Now let us understand this point. Okay, DNA is wrapped यानी कि लिपटा हुआ है, रैप किया है, उसने खुद को लपेट कर रखा हुआ है. जैसे कि आप बॉल के ऊपर धागे को लपेट दो, ठीक, तो वो धागा डीएनए और बॉल आपका हिस्टोन ऑक्टामियर. I had used the word protein over here because histone is a type of protein. Octamer means 8 in numbers. तो क्या होता है 8 यानी 8. ऐसे ऐसे राउंड, ये 4 आगे और इसी के ठीक पीछे अलग 4 होते हैं, और ये चारों को हम एक साथ कहते हैं 8, ऑक्टामियर. Okay, so this is the octamer and this is the histone protein. Now this histone protein is having a wrapped structure of DNA, यानी कि DNA कुछ इस तरीके से उसको रैप किया हुआ होता है. ठीक है, so that is why it is called as a wrapped. All right, now let us see the next point. Histone which you are seeing over here, this histone is of 5 types. 5 तरह के होते हैं हिस्टोन. H1, ठीक, H2, alright, then H2A, ठीक, H2A, sorry, H2A, H3, then H1, H3, H2A, then H2B and H4. 1, 2, 3, 4 and this one 5. बाद में बताऊंगी ये क्यों सर्कल किया और ये अलग क्यों है.
आप जब अब यहां पर स्ट्रक्चर देखोगे ये वाला, तो इन ऑक्टामेर्स में सपोज करो ये है H2A, ये है H2B, ये वाला है H3 और ये वाला है H4। ठीक, इसके ठीक पीछे जो बाकी के चार हैं, जो ये होगा वही वो होगा। अगर ये H2A है तो ये भी H2A होगा, ये भी H2B होगा, दिस वन इज गोइंग टू बी H4 एंड दिस वन इज गोइंग टू बी H3। ठीक, क्लियर? सो जो आगे वाला होगा वही ठीक पीछे वाला भी होगा, दैट इज व्हाई दिस इज द ऑक्टामेर। तो 8 के 8 हो गए। ऑलराइट, द वन इज लेफ्ट ओवर हियर H1। नाउ आप देखोगे कि जो ये डीएनए है, ये पर्टिकुलर आपका डीएनए जो यहाँ पर रैप किया हुआ है, ये डीएनए इस ऑक्टामेर से जुड़ा हुआ होता है बिकॉज ऑफ H1। यानी जो H1 हिस्टोन है, ये H1 हिस्टोन ऑक्टामेर को डीएनए से जोड़ करके रखता है। ऑलराइट, अब जो आप ये स्ट्रक्चर इतना बड़ा देख रहे हो, जिसमें कि डीएनए ने खुद को ऑक्टामेर के ऊपर कॉइल किया हुआ है, इस वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक, सो न्यूक्लियोसोम मीन्स वेयर डीएनए इज रैप्ड टू द हिस्टोन ऑक्टामेर। क्लियर? ये हो गया हमारा पॉइंट क्लियर। अब डाउट ये आएगा कि क्या न्यूक्लियोसोम का पार्ट ये H1 हिस्टोन है? नहीं है। H1 हिस्टोन सिर्फ बांधने का काम करता है, ये इसका पार्ट नहीं होता है। ठीक, न्यूक्लियोसोम यानी ऑक्टामेर और ये रैप्ड डीएनए, बस इतना ही होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जब आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको लगेगा कि ये एक मोतियों की माला है और इस मोतियों की माला पर ये न्यूक्लियोसोम एक धागे की तरह अटैच्ड है, यानी बिल्कुल एक धागे की तरह आपके क्रोमैटिन पर अटैच्ड है। ठीक, तो ऐसा लगेगा कि क्रोमैटिन पर ये धागे जैसा स्ट्रक्चर अटैच्ड है, जो कि आपका न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, जैसे कि एक न्यूक्लियोसोम ये, दूसरा न्यूक्लियोसोम ये, इन दोनों को जो जोड़ने का काम करता है, वो जोड़ने का काम करने वाला लिंकर डीएनए कहलाता है। लिंकर डीएनए। क्यों लिंकर डीएनए कहलाता है? क्योंकि अब आपसे अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि इस ऑक्टामेर पे डीएनए ने कितनी बार खुद को रैप किया है, तो आप कहोगे 2 से थोड़ा कम। आपको हर एक जगह अलग अलग डेटा मिलेगा, बट एक्चुअली में आपको जो एनसीईआरटी में लिखा है वही देखना है। सो 2 सर्कल से थोड़ा सा कम होता है, और उसके बाद जो धागे जैसा स्ट्रक्चर निकला है तो वो दूसरे ऑक्टामेर को भी तो अटैच करेगा। सो दैट इज कॉल्ड इन लिंकर डीएनए। ठीक है, ये हमारा इतना क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक, अगर आप देखोगे तो इस ऑक्टामेर पे कितने बेस पेयर्स होते हैं, एक क्वेश्चन ये बनता है। तो इस पूरे ऑक्टामेर पे 200 बीपीज होते हैं। 200 बीपी ऑन वन न्यूक्लियोसोम। सो इस न्यूक्लियोसोम पे 200 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। हम इसकी बात नहीं करेंगे, यहाँ पे जो धागे जैसा निकला है और जो यहाँ पे निकला है, सिर्फ इस ऑक्टामेर की बात करेंगे। ठीक है, सो इस ऑक्टामेर पे अबाउट 200 बीपीज प्रेजेंट होते हैं। वैसे बहुत सी जगहों पे आपको अलग भी दिखेगा, पर हमें वही देखना है जो हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट का मतलब कि हमारा टोटल न्यूक्लियोसोम कितना होता है। ठीक है, सो द टोटल न्यूक्लियोसोम विच यू सी, दैट टोटल न्यूक्लियोसोम इन योर one nucleotide is about 33 into 10 to the power
4. ओके, सो 33 इंटू 10 टू द पावर 4, ये इतना न्यूक्लियोसोम आपके पास प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर डीएनए पैकेजिंग इन द यूकैरियोट्स. अब अगर डीएनए एक धागे की तरह यूं ही रहता है तो न्यूक्लियस में अटैच होने में से समय लगता, फिट होने में समय लगता. चूंकि ये रैपिंग कर लेता है इस हिस्टोन के ऊपर, इसलिए इसका एरिया कम हो जाता है और कम एरिया में ज्यादा डीएनए हमारी बॉडी में ऑक्यूपाई कर लेते हैं, अपना एक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं. ठीक है, क्रोमैटिन के ऊपर जो मैंने बताया, क्रोमैटिन पे जब आप देखोगे तो क्रोमैटिन वो एक स्ट्रक्चर होता है, क्रोमैटिन फाइबर, जो कि क्रोमोसोम से पहले बनता है, राइट, एंड देन फर्दर क्रोमैटिन डेवलप्स और गेट कन्वर्टेड इनटू द क्रोमोसोम. So this is about your DNA packaging in the eukaryote. That hope you have got understood this. Thank you.